Good morning, students. So today we are going to learn English 5th standard, chapter number 4, Bapu, the father of nation. So students, here in this lesson we are going to discuss about the father of the nation, Mahatma Gandhi. So when he was a child, it was the incident happened in his class, and that incident make impress him to be the honest. So let me go through the text. Part 1, Bapu, the father of the nation, Part 1. Mohan was born in Porbandar on the sea coast of Saurashtra. Saurashtra means now it is known as Gujarat. October 2nd, 1869. So Mohandas Karamchand Gandhi was born in Porbandar. It's a part of Saurashtra. Saurashtra means now it is known as Gujarat, on the date of October 2nd, 1869. When he was a boy, he lived in Rajkot and went to school. There he was not very bright. When he was a child and he went to school, at that time he was not very bright student. Means not he was not a scholar or merit student, but he loved to read. उसे वो ऐसा कोई स्कॉलर स्टूडेंट नहीं था, लेकिन रीडिंग करने में उसे बहुत इंटरेस्ट था. The stories he read helped to make him not only kind and simple, but also a strong and helpful man. So he was not a studious boy, so he was not bright in study, but he read number of books and stories, different stories, which make him not only kind, but also simple and strong. He once read the story of Sravana. Sravana, do you know? It was concerned with the Ramayana. Sravana, a small boy, who used to carry his old and blind parents in two baskets slung on a bamboo. Seeing Sravana's great love for his parents, Mohan decided that he would love and serve his parents in every way possible. जब उसने श्रावणा की स्टोरी रीड की और उसे लगा कि जैसा वो अपने ब्लाइंड पेरेंट्स की सेवा करता है, उनको जो बास्केट में लेकर वो बनारस गया था यानी काशी गया था, तो इसने सोचा कि मैं भी क्या करूँगा कि अपने मम्मी पापा की वैसे ही सेवा करूँगा. Once Mohan saw a play based on the life of King Harishchandra. Harishchandra was a very honest and he was very noble king. So his people were very happy and he loved his people. So when Mohandas read the story of Harishchandra, what happened in his life? Let me see through this story. Harishchandra was an honest, noble and just king, and the people of his kingdom lived happy and peaceful lives. King Harishchandra had lost his kingdom and suffered a lot for telling the truth. आपने सुना है कि राजा हरिश्चंद्र was very honest and truthful king. That's why his people was very happy. यानी जैसा राजा रहता है वैसी प्रजा रहता है. तो राजा हरिश्चंद्र बहुत ऑनेस्ट था, नोबल था और ट्रूथफुल था और उसकी प्रजा भी बहुत आनंदित थी. लेकिन एक दिन क्या हो गया, राजा हरिश्चंद्र ने ट्रूथ यानी सच के लिए अपना पूरा राज्य दांव पे लगा दिया और ही लॉस्ट हिज किंगडम. मोहन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड आल्सो लीड अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट लाइफ. मोहनदास जब छोटे थे, गांधी जी जब छोटे थे, उन्होंने स्टोरी पढ़ी और वो बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, डिटरमाइंड किया कि मैं भी क्या करूँगा, कि अपने खुद से उन्होंने वादा किया कि मैं अपनी लाइफ जो है सच के लिए सैक्रिफाइस कर दूंगा और वो जीवन भर सच की राह पर चलते रहे. तो और एक उनके जीवन में एक छोटा सा इंसिडेंट है स्कूल में, जैसा उनके साथ घटा था उसके बारे में. जब वो स्टोरी हरिश्चंद्र की स्टोरी रीड करने के बाद उनका जो इम्प्रेशन था उनके ऊपर कैसा है, इस स्टोरी से हमें पता चलेगा. लेट वी गो टू सी. Mohan was a very shy boy, school boy. As soon as the school bell rang, he would collect his books and hurry home. Other boys stopped on the way to play or to eat. Mohan always went straight home. He was afraid that the boys might stop him and make fun on him. मोहन कैसा था, एक ना साधारण सा लड़का था, ऐसा कोई स्कॉलर नहीं था और वो बहुत शाय था, यानी बहुत बच्चों से डरता था, वो किसी से मिलजुलता नहीं था और ऐसा सोचता था कि मैं घर पे चला जाऊँ, अगर मैं बच्चों को मिला तो बच्चे मुझे टाइम पास करेंगे. इसलिए वो स्कूल की बेल बजने के बाद, स्कूल छूटने की बेल बजने के बाद वो एक भी मिनट वो स्कूल में नहीं रुकता था और वो भागते हुए घर पे जाता था. वन डे द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मिस्टर गिल्स
came to Mohan's school, he read out 5 English words to the class and asked the boys to write them down. अब स्कूल में जो स्कूल के जो इंस्पेक्टर रहते हैं, स्कूल इंस्पेक्टर, निरीक्षक, वो स्कूल में आए थे और उन्होंने 5 वर्ड बोले और सब बच्चों से कहा कि तुम लोग क्या करो, ये वर्ड्स नोटबुक में कॉपी करो. आउट ऑफ 5 English words to the class and asked the boys to write them down. Mohan wrote 4 words correctly, but he could not spell the 5th word, kettle. केटल का जो स्पेलिंग है KETTLE, उसका स्पेलिंग उन्हें नहीं आता था. उन्हें 4 जो शब्द है पूरे लिखे करेक्टली, लेकिन एक जो शब्द है वो लिख नहीं पाए. The teacher saw that Mohan did not write the word. He quietly told Mohan to copy the spelling from his partner's slate. Mohan ignored his signs. तो टीचर ने क्या किया कि उससे कहा कि, क्योंकि इससे टीचर का भी इंप्रेशन ख़राब होता है. जब कोई स्कूल इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन को आता है और बच्चों को अगर नहीं आता है तो वो इंस्पेक्टर जो है वो टीचर को क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, वो टीचर्स को स्कोल्डिंग करते हैं. तो टीचर ने कहा कि अरे मोहन, तुझे अगर वो स्पेलिंग नहीं आता है, तुम क्या करो, बाजू के बच्चों से लिख लो. ऐसे हलू से उनके कान में बताया. लेकिन मोहनदास करमचंद ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी थी और उन्होंने क्या किया था, डिटरमाइन किया था कि मैं जीवन भर, खुद से एक वादा किया था कि मैं जीवन भर सच की राह पर चलूँगा, ट्रुथ के ऊपर चलूँगा और ट्रुथफुल लाइफ और ऑनेस्ट लाइफ मैं जीऊँगा. तो मोहनदास ने क्या किया, उसको इग्नोर किया. The other boys wrote all the 5 words correctly. Mohan wrote only 4. When the inspector left, the teacher scolded him. I told you to copy from your neighbor, he said angrily. Couldn't you even do that correctly? Everyone laughed. जब वो इंस्पेक्टर चले गए तो टीचर ने क्या किया, टीचर को गुस्सा हो गया कि अरे मूर्ख, तुम्हें मैंने बताया था वो लिखो, तुम्हारे बाजू के बच्चों के नोटबुक में से लिखो, लेकिन तुमने लिखा नहीं. और फिर बाकी वो उसके ऊपर गुस्सा हो गए. सभी बच्चे मोहनदास के ऊपर हंसने लगे. As Mohan walked home that evening, he was not unhappy. He knew he had done the right thing. He was sad that his teacher had asked him to cheat. अभी इतना इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी को इसके ऊपर कोई गीला या शिकवा नहीं था. गांधी जी उसमें कोई भी उनको दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सच का रास्ता अपनाया था. और इतना टीचर ने कहने के बावजूद भी वो अपने सच के मार्ग से हटे नहीं थे. हालांकि उन्हें इस बात पर दुख था कि टीचर ने उन्हें चीटिंग करने के लिए कहा. As a child, Mohan was afraid of the dark. Even in his own house, he wouldn't step into a dark room. लेकिन गांधी जी को क्या था, घर में अंधेरे से बहुत डर लगता था और घर में खुद के घर में भी वो अंधेरे रूम में कभी नहीं जाते थे. He feared ghosts and thieves and snakes. उनको भूतों से डर लगता था, घोस्ट यानी भूत, चोरों से डर लगता था और स्नेक यानी सांप से डर लगता था. The cook Ramba said, "Why are you so afraid? Remember, God will help you. He will always protect you." तो रंबा नाम का जो उनके घर में जो खाना पकाने वाला जो कुकर था, उसने कहा कि अरे मोहन, तुम ऐसा डरते क्यों? भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है. भगवान तुम्हें मदद करेगा और तुम्हारा संरक्षण करेगा. तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं. Mohan was deeply impressed by these words. He took to reciting the name of Rama. और उससे मोहन को कैसा था, मोहन बहुत इमोशनल था. उससे किसी भी बड़े आदमी ने कुछ बात कही तो उसके ऊपर वो भरोसा करता था. और ये जब बात उसके रामबा ने मोहन को, तो मोहन ने क्या किया कि उस समय से वो डरने नहीं लगे और गॉड राम उनका नाम वो हमेशा लेते रहे. His faith in Rama increased as he grew up. He dedicated all his work to God. This boy was मोहनदास करमचंद गांधी. जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने अपना जो पूरा काम था राम के नाम पर ही अपना समर्पित किया, गॉड के समर्पित किया. जब उनकी हत्या हो गई तो उनके लास्ट के जो वर्ड थे वो वर्ड भी क्या थे, हे रामा. उनका वर्ड क्या था, हे राम. यानी अपना पूरा लाइफ उन्होंने राम के लिए समर्पित किया था. यानी इस कहानी से हमें मोरल क्या मिलता है कि मोहनदास करमचंद गांधी के जैसा आपको अगर बनना है तो आपको कोई स्कॉलर होने की या नहीं होने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है, सच के मार्ग पर चलना है और सच के लिए हमेशा के लिए अपने आप को प्रॉमिस करना है. जीवन में कैसा भी प्रसंग आने दो, कितना भी बड़ी मुसीबत आने दो, लेकिन आपको सच के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. रिमेनिंग पार्ट we will see in next
पीरियड। अभी हमने इस कहानी का पहला पार्ट पढ़ा है, आपके लेसन का पहला पार्ट पढ़ा है। सेकंड पार्ट जो है वो आपको मैं कल उसका वीडियो भेजूंगा। आपको इसको पढ़ना है और उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।